Okay. Okay. So plan of today is we will make this resume in HTML and CSS. And before starting that, we will read the basic parts of the CSS, what it is, what is the use of it, and what are the CSS element classes, properties, and how we can use it in our page. And finally, we will make this resume. We will start making this resume. Okay, good. So, who will describe that what is the CSS and what is the use of CSS? Any volunteer who can tell us a little bit about the CSS? Be quick. CSS means CSS. Character Style Speech, and we use it for formatting and styling simple HTML documents. Great, great. And how we use that in HTML page, Atish? सर हमें इनलाइन सीएसएस भी यूज कर सकते हैं और एक अलग से फाइल बना के उसे लिंक करके भी यूज कर सकते हैं. Great. What are the benefit to make a separate file, or what are the pros and cons of using inline CSS? सर सर कोड की जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है. Duplicate data create होगा. Yes, 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 yes. Very good. Very good, very good. Okay, today we are on day 6. New folder, day 6. Okay, so first thing is that CSS is used to decorate your HTML page. Okay, if we look it out, this PDF file, see, you already been written a resume page in plain HTML, and you may look the difference between this page and this PDF and the HTML page you have built yet. So this page is well formatted. It has nice colors, font style, bullet list, all those things. Adding this icon, right? The round pictures. So this called formatting. We are formatting the HTML page, and to format the HTML page, we use CSS. CSS full form is Cascading Style Sheet. So that provide the style to your HTML page. Now, uh, as we have studied this HTML, we find that there are a lot of HTML tags that we have to learn to format to written down the page. Similarly, there are few ways, syntax properties that we will have to know about the CSS so we can format our page, right? So first thing I would like to tell is there are number of ways you can apply CSS on your HTML page, right? As Atish said, one way is writing inline, right? And some of you already if you have worked out on this assignment, I'm sure you have given a search on internet and you must have find out some way to implement the CSS. And I have reviewed your HTML page earlier, and few of you have been written down inline CSS into your code. How does we write the inline CSS? Let me make a new page here just to write down our text, right? And in this, let me write some HTML tag. Let's say you have written a paragraph. This is a paragraph.
graph to learn CSS. So if you will see out on the browser, you will just see a plain line. But let's say you will have to change the color of this complete text. So first thing, to write the inline CSS, you will have to use style attribute. And this attribute you can apply each and every HTML tag. Few of the properties that we have, and we will keep learning about these properties, the CSS properties that used to define the different kind of formatting. One property I'm using is color, and then I'm defining, let's say color is blue. So here you will see this text become into the blue color. Okay, so these are the CSS property, and this is the way to write the inline CSS. You can write down the multiple inline CSS just by separating them by semicolon. So let's say color blue, background color, you would like to have it black. Okay, and see, this make the background color of this paragraph black. Okay, so this is the way you write the inline CSS. This is the first way you write the inline CSS. You can use the style attribute with each and every HTML tag. Other way is write the inline CSS is, let's say you also have the other paragraph, just writing down the second paragraph, and let me copy and write down multiple. Okay, let's say you just wanted to have this alternate paragraphs into this style. So what you will do, that you will copy this style tag attribute और alternate जो tag है अपना paragraph tag, you will write down this on. So now you will see that alternatively we have the background in black and blue with paragraph tag. But in this case, you will notice that we are repeating the same styles on multiple tags. Now let's say someone said कि हमें black की जगह पर blue color करना है या black की जगह पर red color करना है. So what you will do, that you will write down red, red, red. आपको हर जगह पर black की जगह red करना पड़ेगा. Okay, so won't it be good that we can have this style on a single place and add the reference of that style with each HTML tag. So हमें कभी change करना हो तो we can just change in the style, and because we have the reference with of that style with the every tag, so it change the style of each element. So one way is that you can write down the style within the head section by using the style tag, and here you can define the identifier. There can be multiple identifier. We will talk about that. Let's say first I will just like to say alternate, whatever name you can think of, you can give alternate paragraph, and then that will start with curly braces. So notice we have started this reference with dot, then name, and then curly braces, right? So here we can use, we can written down this style here. Okay, and then reference we can provide into this tag. So let's say, but that attribute name will not be style. We will call it class alternate paragraph. Okay, now let's check it out and see. ये हमने red इसलिए हुआ because we have given the red here. Now अब आप इस reference को everywhere जहां पर आपको इसको apply करना है, इस formatting को, you can apply over there. Okay, got it? So these are the two ways. One is you can write down inline
with the tag. Another way is you can write down inline within the page. You can just write down a style tag. You can define the class, and to define the class, we will have to use dot. Okay. And the third way is because every time when you load the page, this is style re-rendered. And ये काफी छोटा स्टाइल टैग है, बट एज यू मेक सम प्रोजेक्ट स्टाइल फॉर्मेटिंग, आप जैसे इसी पेज को बनाएंगे, जो अपना ये पीडीएफ पेज है, तो इसी को बनाएंगे तो अपने पास में बहुत सारी, yes, बहुत सारी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी, सो दैट ब्लॉक सर बिकम। स्क्रीन हट गई। स्क्रीन हट गई क्या? स्क्रीन शेयरिंग हो गई। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं शेयर करता हूँ। अभी विजिबल है? यस सर। Okay. Yes. सर So as we will write down this page, the resume formatted page, you will see that there are a lot of styles we will have to write down. जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा, चलेगा, तो all these style will times and again re-rendered, right? So better is the other way is we copy all these styles, or the other cons, writing down this style into the head section of this page is, if you have multiple pages in your project and this class alternate paragraph, you want to use it on the multiple pages. So because you have written this in the head section of index.html, you cannot use it into the other page. So what is the best way is we can make a centralized CSS file जहां पर कि हमारी सारी ये classes होंगी, सारे references होंगे, formatting होगी, and then we can include that file on each and every page, जिससे कि हम फिर उस class को use कर सके हर जगह पर. Okay, got my point? So a third way is you can use link tag into the head section. So link rel equal to style sheet. We are telling it is a style sheet, and we use the path of style sheet. So let's first create the style sheet, then we will use that. Let's first create a new file and name it style.css. Okay, and let's copy this. यहाँ से इसको हटा देते हैं. जस्ट ए सेकेंड होल्ड करना एक बार. ओके, सो दिस इज, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दी स्टाइल डॉट सी एस एस. नाउ वी विल इंक्लूड दिस सी एस एस इंटू दिस पेज लिंक. अभी आप देखेंगे, एंड नाउ इफ यू विल गो ऑन टू दिस पेज, भैया तुम हट जाओ यहाँ से. अच्छा, नाउ यू विल सी दैट कि हमने अल्टरनेट पैराग्राफ पर जो क्लास लगा रखी है, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट, बिकॉज कि अल्टरनेट पैराग्राफ के लिए क्या फॉर्मेटिंग है इसको पता ही नहीं है. So it's just showing a default text. As soon as I will add the style sheet reference href equals to this style
dot css. Save the path and you see the formatting has been applied. So जो भी formatting हम इस style.css में लिखेंगे उसको हम यहाँ पर एज ए क्लास एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी HTML tag के ऊपर. So these are the three ways: inline, writing the inline with the HTML tag, writing the inline within the page by using the style tag, and writing the CSS into a separate CSS file. Okay, now let's come out and understand how we should define the CSS. और उसको समझने के लिए you will have to understand that आपका जो HTML elements, जो HTML tags होते हैं, right? Some of each and every tag create a box. Okay, so if you see this paragraph tag, इसने एक बॉक्स क्रिएट किया है जो कि यहाँ से शुरू है और एंड ऑफ द पेज पर जाकर के वो खत्म है, राइट? तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इस बॉक्स के सराउंडिंग होगी. कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इस बॉक्स को लेआउट में सेट करने के लिए, कुछ इसके इनसाइड ऐड करने के लिए. तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम अभी उनको समझते हैं, राइट? लेट्स से मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर लूंगा, जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग यू गाइस. क्रिएट, इसको नहीं खोलते हैं, चलो डायग्राम्स को बंद करते हैं, एक्सेल सीटी खोल लेते हैं. ओके, सो लेट्स से कि ये आपका एक वेब पेज है जो अभी हम बना रहे हैं ना. इसको हम वाइट बैकग्राउंड में कर देते हैं. जस्ट पहले तो बॉर्डर दे देते हैं इसका चारों तरफ, जिससे कि क्लैरिटी हो. ओके, so this is a web page of your, right? And now आपने ये एक पैराग्राफ बनाया यहाँ पर, या कोई बॉक्स बनाया है, डिव बनाया है. थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं. Okay, so this is one box. या आपने एक डिव या पैराग्राफ बनाया है. नाउ व्हाट प्रॉपर्टी वी may think on this is, this is a box, right? तो इस बॉक्स के सराउंडिंग क्या क्या चीजें हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट. नहीं, यहाँ नहीं बन पाएगा यार, मुझे ट्राई डॉट ओ खोलने दो. ड्राइंग अच्छी नहीं हो पाएगी वहां पर. वैसे तो आई एम नॉट गुड इन टू ड्राइंग, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं सो कुछ समझने में आसानी हो. डाउनलोड्स में क्रिएट कर लेते हैं. हाँ, लेट्स से CSS बॉक्स को समझ रहे हैं हम, है ना? सो दिस इज वन बॉक्स. एक और बॉक्स बनाते हैं, इसी के अंदर बना लेते हैं. ओके, तो जो भी हम कोई HTML एलिमेंट बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बन करके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं अभी, कि किस किस को हम क्या क्या बोल रहे हैं. ये आपका एक्चुअल बॉक्स है, जो बीच वाला जो बॉक्स है, दिस वन. ये जो बॉक्स है अपना बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बॉक्स है. ये अपना एक्चुअल बॉक्स है. तो हर बॉक्स के बाहर कुछ स्पेस होती है,
हर बॉक्स के अंदर कुछ स्पेस होती है, राइट, और उस बॉक्स का एक बॉर्डर होता है। तो हम किस किन चीजों की बात कर रहे हैं, लेट मी रिटन डाउन हेयर। आउटर स्पेस, बॉक्स के बाहर कुछ स्पेस होगी। इनर स्पेस, बॉक्स के अंदर कुछ स्पेस होगी। बॉक्स का हम चाहें तो उसका बॉर्डर दे सकते हैं, हम चाहें तो उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और उसमें जो कंटेंट है उसके जो टेक्स्ट वगैरह उसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मेजरली आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दीज थ्री प्रॉपर्टीज, आउटर स्पेस, इनर स्पेस एंड बॉर्डर, बाय दिस बॉक्स मॉडल. So this is your actual box, and if you can see that this outer space, the between space between the outer box and this center box, this is called margin. जो आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स के चारों तरफ जितनी भी स्पेस है बाहर, इसके चारों तरफ जितनी भी स्पेस बनेगी वो कहलाती है मार्जिन। तो जो बॉक्स आपका है उसके बाहर जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिन। जो आउटर स्पेस है उसको हम बोलेंगे मार्जिन। ओके, जो आपका बॉक्स बना है उसके बाहर की जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड मार्जिन। उसके अंदर जो स्पेस है, ये जो सेंटर आपका स्पेस है, लेट्स से कि ये जो इसका आपका जो कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है इस बॉक्स के अंदर से, बट आपका एक्चुअल बॉक्स यहाँ से है, तो उस बॉक्स के बॉर्डर के अंदर जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैडिंग। क्लियर? और जो इस बॉक्स का बॉर्डर हम अगर कुछ देते हैं जो उसके चारों तरफ विजिबल होता है दैट्स कॉल्ड बॉर्डर। तो अगर हम इसकी बात करें, हमने जो बनाया हमने दिस वन, तो अगर ये पैराग्राफ आप देखते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर ये आपका बॉक्स है। अब मैं इसका मार्जिन देता हूं तो कहाँ इंपैक्ट पड़ना चाहिए, पैडिंग देता हूं तो कहाँ इंपैक्ट पड़ना चाहिए, यू गाइज विल टेल। तो जैसे अल्टरनेट पैराग्राफ है इसी में चलते हैं, और यहाँ पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, लेट्स से मार्जिन इक्वल टू 50 पिक्सल। तो नाउ यू विल सी कि ये तीन जगह अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई है, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ लेकिन इसके बाहर चारों तरफ 50 पिक्सल का एक स्पेस क्रिएट हो गया। सो अगर आपको बॉक्स के बाहर कुछ स्पेस देना है देन वी विल यूज मार्जिन, और इसकी चार प्रॉपर्टी होती हैं, लेट्स 10 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड लेट्स से 0 पिक्सल। ओके, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट हैंड। अगर आप इनकी चारों प्रॉपर्टी को आप अलग अलग से लिख सकते हो। सीएसएस के अंदर किसी चीज को कमेंट करने के लिए वी यूज स्टार स्लैश। तो अगर आपको सिर्फ टॉप में देनी है यू कैन यूज मार्जिन टॉप, लेट्स से 30 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट, लेट्स से ओनली 5 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ओके, सो यू विल सी लेफ्ट के अंदर जस्ट 5 पिक्सल का मार्जिन आया है, टॉप पर आपके 30 है, बॉटम में सबसे ज्यादा है 100%, तो बॉटम का ज्यादा लंबा मार्जिन हो गया। ओके, इसको हम शॉर्ट हैंड 4 बार इस तरह लिखते हैं, शॉर्ट हैंड के अंदर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, और ये आपका क्या होता है, सबसे पहले यहीं पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसी तरह से इसकी वैल्यू हम लिखते हैं। ओके, सो अगर मुझे पैडिंग देनी है, हमारा 10 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यू गाइस विल हैव टू जॉइन बैक। पैडिंग देनी है हमें लेट्स से 10 पिक्सल,
जैसे मैंने 10 पिक्सल दिया सिंगल, तो अभी ये क्या करेगा, मैंने कुछ ये नहीं बताया कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में क्या आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट इट विल अप्लाई ऑल ऑफ द साइड, चारों साइड पे अप्लाई करेगा। तो इसी अब ये जो आपका बॉक्स है उसके इनसाइड आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ओके, सो पैडिंग, मार्जिन, कुछ प्रॉपर्टीज वी कैन कॉल्ड इट डायमेंशन प्रॉपर्टीज। डायमेंशन के अंदर यू कैन जस्ट डिफाइन विड्थ, लेट्स से 200 पिक्सल। अभी वो 100% पर है, पूरा का पूरा कवर कर रखा था, हमने इसको 200 पिक्सल दे दिया, तो दैट्स विड्थ प्रॉपर्टी। हाइट, हाँ हाइट में लेट्स से 300 पिक्सल दे देते हैं इसको। ओके, सो दैट सेट द हाइट। इसके अलावा होती है मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ, मैक्स मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, जो हम आगे प्रैक्टिस, यू गाइस कैन रीड आउट अबाउट दिस व्हाट आर दीज, और जैसे जैसे यूज में आएंगे वी विल प्रैक्टिस दोस। अदर प्रॉपर्टीज आर बैकग्राउंड, वी ऑलरेडी यूजिंग द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, कि बैकग्राउंड कलर आपने लगाया, कलर की जगह पर आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड डैश इमेज, तो यहाँ पर आप उस इमेज का पाथ देंगे। ओके, जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं लूं आपके लिए, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन की इमेज लगा रखी है, राइट। सो दिस एरोप्लेन इमेज व्हाट वी कैन डू इज कि ये आपका जो पूरा एक डिव बॉक्स होगा या यूएलएलआई होगा, जो भी आप बनाते हैं इसमें डिव लेते हैं, उस डिव के अंदर बैकग्राउंड में ये इमेज लगा देते हैं। लेट्स यूज इट ना, हम इसको यूज करते हैं एक बार। मैं इस इमेज को क्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से, जिससे कि इसको हम हमारे इसमें यूज कर सकें एग्जाम्पल में। या सेव कर लेता हूँ इसको, कहाँ सेव करूँ, डी, अपने अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं, लर्निंग बेसिक्स। और हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, डिव कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लें एक बार। ओके, और अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट के साथ में, टेक्स्ट काफी नीचे गया, ऊपर ऊपर कर लेते हैं इसको, जिससे कि हमें विजिबल रहे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे पहले वो प्लेन उड़ाना है, तो हमें सीएसएस में जाएंगे अपने में। ओके, बैकग्राउंड इमेज, इमेज कहाँ है ये रही। इमेज अपने पास में, यूआरएल लगेगा ना सर, यूआरएल और उसके बाद पाथ देंगे। हाँ यूआरएल लगेगा, यस, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल। सुमित यू सेव मी। ओके, तो ये आपकी इमेज लग गई। अब ये इमेज क्या हो रही है, पूरी तरह से अभी हमने कहाँ लगाई है, पहली बात तो इमेज हमने इस डिव के अंदर नहीं लगाई है, हमने ये इमेज इन पैराग्राफ में लगाई है। ओके, क्योंकि ये अल्टरनेट पैराग्राफ जो सीएसएस है, ये कहाँ यूज हो रही है, ये आपके पैराग्राफ पर यूज हो रही है। लेट्स से यहाँ पर हम इसकी क्लास दे देते हैं, क्लास, इसका नाम दे देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ओके, और ये इंट्रोडक्शन क्लास हम बनाते हैं यहाँ पर, डॉट बैकग्राउंड इमेज, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लगाते हैं, एंड आप देख रहे हो ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, मतलब वो आ तो रही है इमेज, लेकिन उसको इतनी जगह नहीं मिल पा रही कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसकी हम एक बार हाइट बढ़ा देते हैं, या उसका कंटेंट बढ़ा देंगे। अभी एक बार हाइट बढ़ा देते हैं 100 पिक्सल। सी, ये आपके बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ गई, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, हमें तो सिर्फ रिपीट नहीं करनी है, एक जगह ही लगानी है।
तो बैकग्राउंड की एक दूसरी CSS प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट, and you can define whether it should repeat or not. No repeat. क्या तो अभी रिपीट होना बंद हो गई ये सिर्फ अभी ये आपकी जितनी हाइट है तो एक्स भी रिपीट होती है वाई भी रिपीट होती है। यू कैन कंट्रोल कि वो सिर्फ एक्स में रिपीट होनी चाहिए या वाई में रिपीट होनी चाहिए। तो ये आप इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। नो रिपीट, अगर मैं इसको रिपीट एक्स करूंगा तो दैट विल रिपीट ओनली इन एक्स डायरेक्शन। इसको रिपीट वाई करूंगा सो दैट विल रिपीट इनटू वाई डायरेक्शन, जितनी उसकी हाइट है जितना उसको स्पेस मिल रहा है। हमें इसको रिपीट नहीं करना है तो नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन TION, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप, टॉप पे आ गया ये। इसको लेफ्ट में और कर देते हैं, टॉप सेंटर है बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में आ गया, राइट। और इसको अब हम इसका इस कंटेंट की कुछ पैडिंग वगैरह दे करके हम इसको दे दें पैडिंग। लेट से टॉप से दे देते हैं 25 पिक्सल और लेफ्ट से दे देते हैं 50 पिक्सल। ओके, ये अपना जहां अपन सेट करना चाहते थे उस हिसाब से सेट हो गया। सो दीज आर द background properties we use. Similarly, now next, so we have discussed margin, padding, dimension, width, height, background. Next, we can read about border property. Border 1 pixel, solid, and let's say black. ये क्या करेगा, आपका जो ये बॉक्स है उसके चारों तरफ 1 पिक्सल का बॉर्डर ड्रॉ कर देगा। ओके, अब इस बॉर्डर का जो ये हम इसको 1 पिक्सल इज साइज, सॉलिड इज स्टाइल, किस डैश है डॉटेड है किस तरह की स्टाइल आप देना चाहते हैं। दिस इज थर्ड वन इज कलर। अगर हम इसको बढ़ा दें 5 पिक्सल तो ये थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस इज द बॉर्डर विड्थ। हम इसको शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं, हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, लेकिन यूजुअली हम लोग इसको शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉर्डर की एक जो काफी यूज होती है, दैट्स कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस का देखते हैं क्या करता है ये। यू विल नोटिस जैसे मैंने 10 पिक्सल दिया, इसके कॉर्नर के ऊपर आप देखना, मैं और इसको बढ़ाता हूँ, जस्ट फोकस ऑन द कॉर्नर ऑफ बॉर्डर। ओके, सो बॉर्डर रेडियस गिव्स द राउंड कॉर्नर, जितना आप उसमें पिक्सल डिफाइन करते हो। ये आपके इस PDF में यूज आएगा जब आपके पास इमेज स्क्वायर है। लेट्स पुट अ इमेज, है ना। कोई इमेज ले लेते हैं। पिक्चर में क्या मेरी कोई प्रोफाइल पिक पड़ी है, ये पड़ी है ना। इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल लेते हैं। बेसिक्स और यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम लेट्स यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट। say div class equals to profile pic। image src सेम फोल्डर में पड़ा है तो वी कैन जस्ट यूज द नेम। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हमें हमारी किसी कारणवश, तो हम ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसकी जगह दिखा सकते हैं। अभी देखते हैं इमेज यार, इसकी हाइट विड्थ भी दे देते हैं, CSS से देते हैं। चलो इसके ऊपर प्रोफाइल पिक पे चलते हैं, स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल पिक। ये जो CSS यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, किस पर अप्लाई होगी, ये उस इमेज पर अप्लाई नहीं होगी, ये किस पर अप्लाई होगी, इस div पर अप्लाई होगी, राइट। सो अनदर वे कि आपका एक क्लास के अंदर कोई HTML टैग है, उसका भी अगर आपको रेफरेंस देना है, दीज कॉल सेलेक्टर्स। हम सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल सेलेक्टर्स होते हैं। सीधा आपने क्या बताया कि okay, so what I was telling is that this is another way to select the
HTML tag to style. What does this mean by that? There is a parent class profile pic into the HTML और उसके अंदर जो भी image tag होगा ये उस पर formatting apply हो जाएगी. So what we are doing is let's defining the width, let's say 200 pixel. Okay, and then open the browser. तो आपकी साइज जो है वो छोटी हो गई. ओके, 200 पिक्सल की हो गई. इसका हम बॉर्डर रेडियस देते हैं, इसको राउंड करना है. पहले सिर्फ बॉर्डर रेडियस देते हैं 50 पिक्सल एंड देन सी. तो इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड हुए लेकिन हमें इस बिल्कुल सर्कल ड्रॉ करना है. सो पिक्सल की जगह पर वी कैन यूज परसेंटेज. ओके, 50% जब हम करेंगे तो आइडियली एक जो आपका स्क्वायर है वो पूरा का पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन यूज दिस बॉर्डर. बॉर्डर के बाद में वी कैन यूज पोजीशन. पोजीशन अभी नहीं पढ़ते हैं, पोजीशन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. पोजीशन से पहले व्हाट आई वांटेड टू टीच यू गाइस इज लेआउट काइंड ऑफ थिंग. सो लेट्स से कि हमारा ये जो बॉक्स है, ये जो अपना रिज्यूमे वाला जो पेज है, इसमें हमारे पास दो कॉलम है. किसी भी पेज की HTML CSS या उसको UI बनाने से पहले यू शुड हैव अ वेरी क्लियरिटी इन योर माइंड कि आप उसको कैसे बनाओगे. तो यू कैन डिफाइंड ऑन द पेपर, और इंस्टेड ऑफ द पेपर लेट्स यूज दिस एक्सेल सीट. कि ये अपना पेज है, इसको देख करके हमें लगता है कि एक कॉलम ये जिसमें ब्लू बैकग्राउंड है और दूसरा कॉलम ये जो व्हाइट बैकग्राउंड का है. सो वी विल हैव टू कॉलम, two box. One is this left and other one is this right. ऑब्वियस सी बात है कि राइट जो कॉलम है वो दिख रहा है हमें बड़ी साइज का है. ओके, तो हमारे पास में दो ब्लॉक हो गए, वन दिस वन एंड सेकंड दिस वन. तो दिस इज आवर फर्स्ट div और दिस इज आवर नेक्स्ट div आफ्टर दैट, राइट. और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए. बट div की क्या प्रॉपर्टी होता है, वो तो ब्लॉक काइंड ऑफ HTML टैग होता है कि जब आप div लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ देख रहे थे आप 100% पे कवर कर रहा था बैकग्राउंड जब तक कि हमने उसको विड्थ नहीं दी. विड्थ देने के बाद भी जो सेकंड पैराग्राफ है वो उसके पैरेलली स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो उसके बाद में शुरू होता है. सिमिलरली div भी वैसा ही है, आपको 100% कवर करता है बाय डिफॉल्ट. और अगर आप उसको विड्थ देके छोटा भी कर देंगे तो नेक्स्ट अगर आप div लिखेंगे तो वो आपका इसी तरह से होगा कि ये आपका पैराग्राफ है, इसके बाद दूसरा पैराग्राफ नीचे यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस बचा हुआ भी है. तो इस लेआउटिंग के लिए हम जो यूज करेंगे अभी, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया. ये बहुत पहले यूज किया जाता था. लेकिन अब हम डिवीजन टैग यूज करते हैं और CSS3 में कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वन इज फ्लेक्स बॉक्स. फ्लेक्स प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे इस लेआउट को बनाने के लिए. तो फ्लेक्स को पढ़ना अच्छे से जरूरी है. let me I will share the link of an article from CSS Tricks website जहाँ पर कि काफी अच्छे से फ्लैक्स के बारे में डिफाइन किया गया है. लेट्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू रीड मोर डिटेल फ्रॉम देयर एंड फिर इस पेज को हम दोबारा से बनाएंगे. ओके, बट बिफोर दैट हमारे माइंड में कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास में दो बॉक्स हैं, पहला div ये होगा, दूसरा div ये होगा. ओके, बना लेते हैं एक बार HTML में क्विकली. HTML बनाते हैं पहले, है ना. मैं इन सबको हटा देता हूँ. ओके, अपना पहला div ये होगा जिसको हम बोल देते हैं एक बार लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट से साइड बार, इसको बोल देते हैं साइड बार. ये अपना साइड बार वाला पार्ट है. और इधर मैं बना दूंगा ये अपना कंटेंट हो गया, मेन कंटेंट. ओके, CSS भी हटा देते हैं एक बार सारी. साइड बार आ गया, आपका मेन कंटेंट आ गया. बट एज आई सेड कि आपका 100%
पेज के स्टार्ट से यहाँ तक है, यहाँ तक दोनों का कलर भी दे देते हैं। CSS बनाते हुए चलते हैं साथ में। लेट्स से इसके ऊपर हम क्लास लगा देते हैं साइड बार, और इस पर क्लास लगा देते हैं मेन कंटेंट। ये ढंग से बंद क्यों नहीं हो रहा, इस तरह कलरफुल क्यों आ रहा है? क्लास क्लास नहीं लिख क्लास भी रहा तो है। लिखना पड़ेगा। ओके सर, ओके ओके। मेन कंटेंट कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि क्लासेस के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। कलर दे देते हैं एक बार के लिए। सो डॉट साइड बार और बैकग्राउंड कलर। मुझे CSS का लिंटर डालना पड़ेगा जिससे कि सजेशन आ जाए मेरे पास। बैकग्राउंड कलर एंड, हाँ ब्लू दे देते हैं अभी, है ना, बाद में कलर कोड निकाल के बाद में डालेंगे। और ये आपका डॉट मेन कंटेंट, और इसका भी कोई कलर दे देते हैं फिलहाल, बाकी ये तो वाइट ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर हम इसको रेड दे देते हैं अभी। कलर चॉइस बहुत बुरी है ना, कोई बात नहीं। लेकिन तो ये आप देखोगे कि 100% के ऊपर है, और एक बाई डिफॉल्ट एक के ऊपर एक आएगा। हम इसकी विड्थ भी विड्थ दे देते हैं। लेट्स से विड्थ दे दी हमने 300 पिक्सल। ओके, बट और इसकी विड्थ दे देते हैं लेट्स से 700 पिक्सल। स्टिल एक के ऊपर एक ही है ना, ये जो हम चाहते हैं वो डिजायर रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो इनको लेआउट देने के लिए एक, इनकी जो स्पेस है, स्पेशली जो इनके जो अवेलेबल स्पेस है उसका सही यूटिलाइजेशन करने के लिए हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट। बाय डिफॉल्ट इनका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक होता है div का डिस्प्ले। हम उसको क्या कर देंगे, फ्लैक्स। और उसके लिए क्या करेंगे, ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें इनको एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। मतलब दोनों को एक पेरेंट div के अंदर रैप करना पड़ेगा। सो लेट्स रैप इट आउट हेयर। div क्लास कंटेनर दे देते हैं इसका नाम, CONTAINER। ओके, और इसको हम कहाँ बंद करते हैं, यहाँ। ये क्लास हमने सिर्फ किस लिए बनाई है, सिर्फ इसलिए कि हम इन दोनों को रैप कर सके आपस में और फ्लैक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सके। फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम कहाँ लगाएंगे, इस कंटेनर बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। कंटेनर डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इसने अब जो भी चाइल्ड एलिमेंट हैं इसके कंटेनर के चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन है, आपका साइड बार और मेन कंटेंट, इनकी प्रॉपर्टी को ये फ्लेक्स कर देगा। सो सीधा मैजिक, जैसे फ्लेक्स किया, क्योंकि इसके इधर जो ब्लू बॉक्स है आपका, इसके इधर वाइट स्पेस अवेलेबल थी, तो इसने नीचे वाले को वहां पर फिट कर दिया। तो दैट फ्लेक्स प्रॉपर्टी ट्राई टू यूटिलाइज द अवेलेबल स्पेस। अगर मैं तीसरा ड्यू यहाँ पे इसके जस्ट पेरेंट में ही बनाऊंगा, यहाँ पर कुछ ड्यू जस्ट ए टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर लेके आएगा। अगर ये स्पेस यहाँ पर खत्म हो जाएगी देन इट विल रैप इनटू नेक्स्ट लाइन। सो दिस इज द पर्पज ऑफ फ्लैक्स। तो आपको जब ये रिज्यूम बनाना है तो यू विल हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी div flex। एंड क्योंकि आपके पास दो कॉलम है तो आपने दोनों कॉलम को इधर उधर कर दिया प्रॉपर्टी यूज करके div flex। अब नाउ यू विल यूज इनसाइड दिस साइड बार। अब जो भी आपको बनाना है इसके अंदर, लेट्स से कि आपको प्रोफाइल पिक बनानी है, तो यू कैन यूज div क्लास इक्वल टू प्रोफाइल पिक एंड देन img src और
आपका जो भी इमेज का नाम है, नाम भी तगड़ा ही है। कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, देन सी आपकी इमेज, आपके लेफ्ट कॉलम में इमेज आ रही है, इमेज आ गई आपकी यहाँ पर। और आपका मेन साइड में कंटेंट आ रहा है। यू कैन जस्ट डिफाइन द width height of this image and then border radius, you can format that, but you have a layout. Now this flex box have lot of other properties available. First thing is let's call it justify content बोलते हैं उसको। अभी एक बार इमेज को हटा देते हैं, काफी बड़ा कंटेंट है, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके, अभी अपनी जो करंट रिक्वायरमेंट उसको तो ये फुलफिल कर रहा है, राइट? कि आपका बिल्कुल दोनों बिल्कुल लेफ्ट कॉलम साइड बार और आपका राइट कॉलम मेन कंटेंट बिल्कुल पास पास में आना चाहिए, पास पास में आ रहा है। आप मेन कंटेंट की पैडिंग दे दोगे इसकी, तो इसका कंटेंट के अंदर अच्छी स्पेस हो जाएगी और साइड बार को आप फॉर्मेट कर लोगे। बट फ्यू ऑफ वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स इज जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट ही होता है CONTENT, and let's me write down it center. सो जस्टिफाई कंटेंट ने क्या किया कि जो इसके अंदर इस फ्लैक्स बॉक्स का जो कंटेनर है उसके अंदर जितना कंटेंट है उसको उसने सेंटर में शिफ्ट कर दिया। मतलब कुछ स्पेस लेफ्ट में है, कुछ स्पेस राइट में है, वो उसने उसको सेंटर लाइन कर दिया। अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट्स से कि स्पेस बिटवीन, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी होंगी। ओके, सो जो भी चाइल्ड एलिमेंट है फ्लैक्स कंटेनर के, उनके बीच में उसने स्पेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों, अगर अभी दो हैं, तीन होते तो तीनों के बीच में बराबर स्पेस हो जाती है। लेट्स क्रिएट द थर्ड वन। सर 31, हाँ 30 बोलो। सर जो स्पेस बनी है उसे मैं एडजस्ट कर सकते हैं? स्पेस बनी है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे सर? ये देखो, तीन कंटेंट है, तीनों के बीच में स्पेस आ गया, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। यू कैन यूज, आई गेस इफ आई एम रिमेम्बर करेक्टली, गैप करके कोई प्रॉपर्टी होती है। 20 पिक्सल अगर मैं दूं इसमें, नहीं, कॉलम गैप आएगा सर। है। कॉलम गैप होगा, ग्रिड में तो कॉलम गैप होता है, इसमें हाँ, भी शायद इसमें भी कॉलम गैप ही इसमें भी होता है। होता है, रो गैप या कॉलम गैप दो होते हैं। रो गैप इन फ्लेक्स या कॉलम गैप, रो गैप प्रॉपर्टी होती है और एक कॉलम गैप प्रॉपर्टी होती है, और उसका जो शॉर्ट हैंड होता है वो गैप होता है। तो हम दोनों यूज करके देखते हैं एक बार। गैप, लेट्स से 20 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। डॉक्यूमेंट इज नो। So one way we can we will explore the gap properties. I will look it out that how we can control this. Or other way is that you don't need to use this justify content if you have to is control the padding margin. So you can just use the padding and margin with this sidebar and box. Let's say कि हमने इसका margin right कर दिया 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल इसके साथ देगा। बट द बेस्ट वे कि इसका ये सिर्फ ये उसी के साथ काम करेगा जिस बॉक्स के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, गैप प्रॉपर्टी। आई विल लुक इट आउट दैट हाउ बेटर वी कैन यूज द गैप प्रॉपर्टी एंड दैट विल टेल यू। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। There are multiple properties of justify content, space between, space around, you can play with that. Let's stick with right now with center. ओके, थर्ड बॉक्स हम हटा देते हैं, index.html का ये थर्ड बॉक्स हम हटा देते हैं। एंड इसकी हाइट और CSS को भी हम इस तरह हार्ड कोड डिफाइन करने के बजाय व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक जगह से कंट्रोल कर लेते हैं। लेट्स से कि हम कंटेनर की विड्थ दे देते हैं, विड्थ 1000 पिक्सल
और यहाँ पर हम परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज में भी यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ, और जो बाकी बची है ये अपने आप ही कवर कर लेगा। मेन कंटेंट ने पूरा कवर नहीं किया है तो यू कैन डिफाइन विड्थ 70%। ओके, बट इन दैट केस ये आपका सेंटर लाइन नहीं करेगा इसको, क्योंकि 1000 पिक्सल यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। इसलिए इसको ये उसके सेंटर लाइन कैसे कर सकता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आपका कोई यूज नहीं करता। अब आपको इस कंटेनर को अगर सेंटर करना है किसी की विड्थ दे करके, सो तो यू कैन यूज मार्जिन डैश ऑटो, मार्जिन कोलन ऑटो। तो ये क्या करेगा, मार्जिन अपने आप लगा देगा, जो आपका कंटेनर बॉक्स है उसके इधर उधर बराबर मार्जिन सेट कर देगा। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस स्टाइल। अगर आपने बनाया है रिज्यूमे, इसको बनाया है, तो यू कैन यूज दिस लेआउट फ्रेमवर्क एंड देन आपको इसका बैकग्राउंड, अभी तक जो हमने CSS पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं हमने, बैकग्राउंड वगैरह वही सारी यूज होंगी। एक तो और बता देता हूँ, लेट्स से कि आपको फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, फॉन्ट डैश फैमिली एरियल। तो यहाँ पर आप इस तरह से फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कैन यूज द फॉन्ट साइज टू डिफाइन द साइज ऑफ फॉन्ट। ये जो आपका फॉन्ट दिख रहा है, इनकी साइज डिफाइन करनी है, यू कैन यूज फॉन्ट स्टाइल टू गिव इट बोल्ड या इटैलिक। तो यू कैन यूज फॉन्ट स्टाइल एंड ULLI यूज होगा, बैकग्राउंड यूज होगा, हेडिंग, दैट्स इट। इस पेज में आपका सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज होंगी। लेट्स से आपको कलर देना है तो यू कैन यूज कलर, टेक्स्ट कलर, सी द डिफरेंस। बैकग्राउंड कलर देना है तो यू कैन यूज द बैकग्राउंड कलर, और आपको सिर्फ टेक्स्ट कलर देना है, जैसे ये व्हाइट कलर का देना पड़ेगा आपको, यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड ब्लू है, व्हाइट कलर देना पड़ेगा, तो यू कैन यूज कलर व्हाइट। ओके, कलर भी मल्टीपल होते हैं आपके, कि ये जिस हेक्सा कोड यू कैन जस्ट यूज द सिंपल टेक्स्ट टू स्पेसिफाई द कलर। तो ये आपका कलर के लिए काम में आएगा। You can use these icons as a background on this LI items। ठीक है, so now the assignment will be, आप इसको इस लेआउट के साथ में you will redesign by using the flex property CSS। I hope you guys have now a better idea of using CSS। एक चीज और I would like to tell about the selectors। So we were discussing about selectors, कि आपकी जो CSS प्रॉपर्टी, व्हाट डज मीन बाय सेलेक्टर इज दैट, ये जो CSS प्रॉपर्टी है, ये CSS प्रॉपर्टी किस HTML टैग पर अप्लाई होगी, हाउ द CSS विल सेलेक्ट कि मुझे कहां पर जाकर के अप्लाई होना है, राइट। सो देयर आर मल्टीपल वे। हमने क्या यूज लिया है, वी हैव यूज्ड क्लास। ओके, क्लास एट्रीब्यूट पहला सेलेक्टर। तो किसी भी HTML को सेलेक्ट टैग को CSS में सेलेक्ट करने के लिए वी कैन यूज क्लास एट्रीब्यूट। HTML टैग के साथ में हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एंड देन उसके बाद में यूज डॉट इन CSS टू सेलेक्ट द क्लास एट्रीब्यूट। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, CSS में डॉट यूज किया। डॉट कंटेनर मतलब कि किसी ना किसी HTML टैग के ऊपर आपका कंटेनर नाम की कोई क्लास लगी होगी, तो ये लगी यहाँ पर, इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये क्लास जो है मल्टीपल, एक ही क्लास जो है आपके HTML पेज पर मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है। दूसरा एट्रीब्यूट होता है ID। तो लेट से हमें पता है कि साइड बार हमारा एक ही होगा, कंटेंट हमारा एक ही होगा, ये रिपीट नहीं होंगे। ओके, इसके अंदर जो
पार्ट है वो रिपीट हो सकते हैं, मल्टीपल सीएसएस मल्टीपल, जैसे कि यहाँ देखोगे हेडिंग है, आपने हेडिंग करके सीएसएस बना दी, वही क्लास आप यहाँ पे यूज करोगे, वही क्लास आप यहाँ पे यूज करोगे, वही क्लास आप यहाँ पे यूज करोगे, बिकॉज ऑल दीज थ्री हेडिंग्स शेयर द सिमिलर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो ये आपकी रिपीट होगी, यहाँ पर आप क्लास यूज लोगे, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि साइड बार एक है और कंटेंट एक है, सो यू मे यूज आईडी, क्लास भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द पर्पज ऑफ आईडी। और आईडी हमारे, देन आईडी हमारा एक सिलेक्टर बन गया। सो सीएसएस के अंदर यू कैन सेलेक्ट, अभी आप देखोगे तो आपकी सीएसएस हट जाएगी यहाँ से। ओके, जो भी आपने सीएसएस लगाई थी वो यहाँ से हट गई है। नाउ आईडी को हमें एक्सेस करने के लिए डॉट की जगह हम यूज करते हैं हैश, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आपका सेट हो गया। सो द टू डिफरेंस इज, टू थिंग इज कि आईडी हम वहीं यूज करते हैं जो कि आपके पूरे पेज पर एक जगह ही यूज हो रहा होगा, वो सेलेक्टर एट्रीब्यूट, और क्लास को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। सो सेकंड सेलेक्टर इज आपका आईडी हो गया। हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, हैश। थर्ड वन इज टैग नेम। लेट्स से इसी को बात कर लेते हैं ना, ये हमारा कोई पैराग्राफ टैग है, नहीं पैराग्राफ टैग बनाते हैं इसको थोड़ा सा और बनाते हैं। लेट्स से कि सेलेक्टर जो है ये हमारे, इसको हेडिंग टैग बना देते हैं एक, H4 सेलेक्टर्स, ठीक है। और सीधा का सीधा हम H4 के साथ में इसको एक्सेस कर सकते हैं, कि जितने भी H4 हम यूज करेंगे, हमने न तो डॉट यूज किया न हैश यूज किया, हमने सीधा HTML टैग का नाम यूज किया। इसकी फॉन्ट साइज लेट्स से 22 पिक्सल कर देते हैं। कलर अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, इसको थोड़ा ग्रे कर देते हैं। इसी सेलेक्टर्स, ये आपका ये स्टाइल इस पर अब जितने भी H4 आप लिखेंगे सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी, विदाउट राइटिंग एनी एट्रीब्यूट्स ओवर देयर। तो आप सीधा HTML टैग को भी सिलेक्टर बना सकते हो। एक चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि आप इनहेरिटेड टैग्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने अभी यूज किया था इमेज को, इमेज आ गई, इसको छोटा बड़ा, इसके ऊपर अपने CSS अप्लाई करनी है, कोई CSS नहीं लिखी, बट वी कैन यूज ए इनहेरिटेड CSS। तो हमने क्लास लगाई और उसके अंदर हमने बताया कि इमेज टैग है, और इसके ऊपर हम सीधा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेट्स से 150 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, एंड देन सी आपका आ गया यहाँ पर। इसको हमने कर दिया मार्जिन ऑटो, तो ये सेंटर हो जाएगा। मार्जिन ऑटो सेंटर नहीं, अच्छा इमेज के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यूज कर लेंगे और कुछ यूज कर लेंगे। तो ये आपका सीधा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी आपकी यूज हो जाती है। ओके, इसी तरह से आप चाहो तो इसको, जैसे डॉट कंटेनर है, इसके अंदर अगर आप किस, ये साइड बार या फिर कुछ CSS ऐसी हैं जो कि मल्टीपल टाइम पर, ये प्रोफाइल पिक है, ये कहीं और भी यूज हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ इसको साइड बार के अंदर वाली CSS पर अप्लाई करना है, सो यू कैन मोर इनहेरिट दैट हैश साइड बार, नॉट डॉट साइड बार, हैश साइड बार। तो ये क्या हो जाएगा, साइड बार के अंदर प्रोफाइल पिक नाम से कोई क्लास है, उसमें कोई इमेज टैग है, उस पर जाकर के आपकी ये CSS अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलेक्टर्स वी में यूज। थर्ड, अच्छा आपका सेकंड था आईडी, थर्ड आपका हो गया टैग नेम, फोर्थ आपका हो गया
inheritance, inherited class or tag or ID, whatever you can refer over there. Okay, so these 4 kind of selectors we can use. Okay, so let's wrap for today. आपको इस लेआउट को यूज सर करते हुए, यस, वो जो आपने रेज्यूमे बनाने के लिए दिया था हाँ, उसमें 2 पेज हैं और सेकंड वाले में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एक्स्ट्रा में, तो वो सेकंड वाला भी बनाना है क्या? नहीं फर्स्ट पेज ही बना लो, सेम इधर फर्स्ट तक ही खत्म कर दो, यहाँ तक ही। ठीक है, इमेजेस वगैरह आपको निकालनी है, आप इनको क्रॉप करके यहाँ से और निकाल सकते सर मैंने मैंने गूगल फोटोज पे भी लिंक दे के देख लिया और गूगल ड्राइव पे से भी लिंक दे के देख लिया, लेकिन मेरी फोटो नहीं आ रही। हैं। जैसे और ये आप कैसे, क्लोन कर रहे हो तो फोटो शो नहीं कर रही। किसी भी फोटो को आप लिंक भेजो मुझे कि क्या आप आपका लिंक काम कर रहा है पब्लिकली, जो आप गूगल ड्राइव वगैरह से हाँ यूज कर हाँ, रहे हो। मैंने गूगल गूगल पे पेस्ट करके चेक कर लिया, वो मेरे को फोटो आ भेज रही दे, है वहाँ अभी पे। अभी 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 भेज दो लिंक चैट के अंदर, डिस्कॉर्ड पर, व्हाट्सएप पर, एक कहीं मिनट भी जल्दी से। सर, वो कोड में है और मैं कॉलेज में हूँ ठीक और है, तो कोड बाद में उधर भेजना। है। बाद उधर किधर है, कॉलेज में क्या? कोड तो गिटअप पे रहता है ना भाई, लैपटॉप नहीं तेरे पास? हाँ, फिर नहीं लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं पीसी है? पे काम करता हूँ ना मैं। ओके, ठीक है, देन जिसमें से क्लोन कर सकता घर जाके भेज देना है ना। अदरवाइज हम जैसे कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, लेट्स से आ इसकी इमेज सर्च करें, मोदी जी की सर्च कर लेते हैं। इमेजेस, किसी भी इमेज का अगर हम पाथ लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, नहीं ये हमें डेटा वाला पाथ नहीं चाहिए, हमें HTTP पाथ चाहिए। इमेज इन न्यू टैब, डेटा इमेज ये पाथ नहीं लेंगे, कोई दूसरा लेते हैं। कहाँ इमेज, राइट क्लिक ऑन इमेज इन न्यू टैब, ये पाथ लेते हैं और अपने कोड में डालते हैं, देखते हैं कैसे काम नहीं करेगा। आ गए मोदी जी, आ गए। ठीक है, तो काम करेगा, आपके पाथ में कुछ दिक्कत होगी। गूगल पे से कोई इमेज उठा रहा हूँ तो वो तो काम कर रही है सर। अरे तो फिर आप जो इमेज वहां से यूज कर रहे हो ड्राइव से, वो ड्राइव आप एक बार इनकॉग्निटो मोड में उस URL को खोल के देखो, उस इमेज को एक्सेस करने के राइट्स भी हैं क्या आपके पास? तो सर, भाई आपने, हो सकता है कि आप उसको ब्राउजर में चला रहे हो